Hello students, good morning all of you. Dear students, today we are going to talk about the chemical properties of metals. Okay. Dear students, we have read about the physical properties of metals and non-metals. Okay. What were these? The physical properties were its hardness, shiny appearance, its physical state, its ductility, malleability, sonority, etc. etc. Okay. Now, today we are going to talk about the chemical properties of metals and non-metals. You know, what do you mean by chemical properties? Physical properties means the properties or the characters that appear physically. They appear from outside the materials. Okay? कैसे वो दिखते हैं, उनका क्या की textures क्या है, etc. So, physical properties, what do you mean by chemical properties? So chemical properties means it's the chemical nature, okay, how they react with other materials and what they form, okay. So basically we are going to talk about the chemical reactions. You have learned in your previous class physical change and chemical change, okay. So the materials or the substances react with each other and form new substances, okay. So this type of phenomena is called as chemical reaction or chemical changes. So how they react with others, okay. So first talk about the metals. Metals reaction with oxygen, okay. What happens when metal reacts with oxygen, okay. Oxygen means air because air have oxygen, nitrogen and other gases, okay. So when metal reacts with oxygen, it forms metal oxide, okay. It's the properties of metals that metal forms metal oxide when they react with oxygen. Like example, magnesium is a metal. When magnesium react with oxygen, it forms magnesium oxide, okay. Let's see how. When we burn magnesium with air, it forms the ashes, okay, and these ashes are the magnesium oxide, okay. Now, non-metals when react with oxygen, they also form non-metallic oxides, okay. For example, non-metal like sulfur react with oxygen, it's form sulfur dioxide, okay. Now let's see the nature of metallic oxide and non-metallic oxide, okay. You know about acid and base, okay. You have learned in your previous class. Acids are sour in taste, okay, and bases are bitter in taste, okay. So how can we understand that the metallic oxides are acidic or basic in nature? When metallic oxides react mix with water, okay, and this water is tested, this metallic oxide tested with litmus paper, okay, then they term red litmus to blue. That means metallic oxides are basic in nature, okay. So generally metallic oxides are basic in nature, okay. Next, non-metallic oxides. Non-metallic oxides, same. When we react sulfur dioxide with water, it forms sulfuric acid, okay. This sulfuric acid when tested with a litmus paper, then this acid turns blue litmus to red litmus. That indicates the sulfuric acid is acidic. So generally non-metallic oxides are acidic in nature, okay. Now the reaction with air of metals is another example of rusting, okay. So rusting जो है like iron rusting, you have learned in your previous class rusting, okay, or it is also called as corrosion, okay. When we expose iron elements in air and there is humidity, so these three air, iron plus moisture, that means the water vapor, reacts with each other and forms oxides, okay. So rusting is an also example of metallic oxide, okay. Now next is reaction with water,
Okay, so when metals react with water, okay, it forms metal oxides, okay, or metal hydroxide plus water. Okay, so metal plus water, they form metal oxide, or also they can form metal hydroxide plus hydrogen. Okay, how? You know कि sodium is a very reactive metal. Okay, so sodium is kept in kerosene because sodium is very reactive. When it's react with water, it forms sodium you know कि oxide or sodium hydroxide. That's why sodium reacts with sodium kept in kerosene oil. Okay, clear? Okay, so when sodium reacts with water, sodium plus water is equal to, or they form sodium hydroxide plus water. The reaction we can write it symbolically. Okay, sodium Na plus water H2O, it forms sodium hydroxide, that is NaOH plus hydrogen. Okay, clear? Now, how can we understand this gas is releasing is hydrogen gas? Okay, so in order to test that the produced gas is hydrogen, bring a burning matchstick or a burning candle near the beaker. ठीक है, तो जिस बीकर में हम ये टेस्ट कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन है? ओके, सो जब हम क्या करते हैं, एक मैच स्टिक लेके आएंगे. ओके, सो उसमें क्या होगा, जैसे ही हम उसके पास मैच स्टिक लेके आएंगे वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, सो द पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट द गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन. ओके, अगर वो मैच स्टिक बर्न हो गई तो वो ऑक्सीजन है, अगर वो मैच स्टिक पॉप साउंड क्रिएट कर रही है सो इट्स अ हाइड्रोजन गैस. ओके, क्लियर? नाउ अगर हम मेटल ऑक्साइड मेटल का वाटर से रिएक्शन अदर एग्जांपल ले लें, सो हियर इज मैग्नीशियम. ठीक है, तो मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ओके, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, दिस इज बिकॉज फॉस्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. ओके, सो फॉस्फोरस जो है आपका, उसको आपका फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि सोडियम आपका रिएक्टिव मेटल है, लाइकवाइज फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. ओके, सो ये क्या होता है, जब हम इसको एयर में रखते हैं तो फॉस्फोरस क्या करेगा, वो बर्न करने लगता है. दैट्स वाई फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर. ठीक है, स्टोर इन वाटर, बिकॉज ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है. ठीक है, सो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए फॉस्फोरस को क्या किया जाता है, वाटर में केप्ट किया रखा जाता है. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स. ओके, डाइल्यूट एसिड्स. नाउ एसिड्स, यू नो कि डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते थे, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिनरल एसिड्स की. ठीक है, सो व्हेन मेटल रिएक्ट, यानी कि मेटल्स को जब हम मिनरल एसिड्स के साथ मिक्स करेंगे सो व्हाट दे विल फॉर्म. ओके, सो मेटल प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स कि HCl. ठीक है, ये दोनों जब एक साथ होंगे तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, सो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ठीक है, सो इसमें है आपका जिंक, जैसे ले लिया जिंक प्लस हमने डाइल्यूट एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये क्या बनाएगा आपका, ऑलवेज क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट बनाएगा. तो ZnCl हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन. ओके, क्लियर? ना नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, सो नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड नो रिएक्शन, मतलब कुछ भी नहीं बनेगा वो. ना रिएक्शन विद बेसिस. ओके, बेसिस से अगर रिएक्शन करें, ठीक है, बेस में क्या होता है आपका, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स सी, टेक अ यू नो कि मैग्नीशियम रिबन इन अ टेस्ट ट्यूब. ओके, एंड take aluminum in another test tube. Okay, and add some sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base. Okay, तो sodium hydroxide ऐड करना है टेस्ट ट्यूब A, यानी कि आपके मैग्नीशियम वाले टेस्ट ट्यूब में, एंड इन टेस्ट ट्यूब B, दैट मीन्स एल्युमिनियम फॉयल वाले टेस्ट ट्यूब में. ओके, सो what happened. Okay, so when we
bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Okay, it creates a pop sound. ठीक है, एक जलती हुई माचिस की तीली जब हम टेस्ट ट्यूब के पास में लेके आएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका एक पॉप साउंड क्रिएट होगा. ठीक है, सुनाई देगा. सो यही चीज हमने दोनों टेस्ट ट्यूब के साथ करना है. दोनों में है आपका पॉप साउंड सुनाई देगा. ठीक है, दैट इंडिकेट्स द बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो एक केमिकल बनेगा प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. इफ देयर इज हाइड्रोजन गैस रिलीजिंग देन वी कैन से कि दे रिएक्ट विद ईच अदर. ओके, क्लियर. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में और बेसिस की जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, सो यू हैव लर्न दैट कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव metal displaces a less reactive metal from its salt solution is called a displacement reaction. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, सो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है. ठीक है, इसका सोल्यूशन बनाएंगे यानी कि इसमें हम वाटर मिक्स करेंगे. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज वी कैन डू इन लैब. ओके, केमिस्ट्री लैब में हम ये कर सकते हैं. तो केमिस्ट्री लैब में सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं. सो हमें अगर एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर ऐड आयरन नेल इन इट. ठीक है, उस सॉल्यूशन में हमने अगर आयरन नेल डाल दिया सो व्हाट विल हैपन. ठीक है, और इसका जो वो है, ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट था. ठीक है, अगर हम इसको रिएक्शन में बना के देखेंगे तो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस हमने इसमें आयरन ऐड कर दिया. ठीक है, सो होगा क्या कि कॉपर सल्फेट में से क्या होगा, जब हम उसमें आयरन ऐड करेंगे तो आयरन क्या करेगा, उस सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस करेगा और वहां पे अपनी जगह ले लेगा. ठीक है, और कॉपर अलग हो जाएगा. क्लियर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर अ हाई रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव मेटल, ओके, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, this is called as displacement reaction. Okay, now these all were chemical properties, जिसमें हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने सारे मेटल्स हैं, जितने नॉन मेटल्स हैं, वो सारे एक नेचर के नहीं होते हैं. ठीक है, यानी कि सारे के सारे आपके रिएक्टिव नहीं होंगे, सारे के सारे आपके नॉन रिएक्टिव भी नहीं होंगे. ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ रिएक्टिव होंगे, कुछ लेस रिएक्टिव होंगे और कुछ बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होंगे. ठीक है, सो वैसे ही क्या होता है, जैसे कि आपके सोडियम मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, कॉपर जो होगा वो उन सबसे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है. उसके अलावा अगर हम गोल्ड और प्लेटिनम की बात करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं. ठीक है, they do not react with oxygen, water और even dilute acids. ठीक है, सो इसीलिए गोल्ड एंड प्लैटिनम्स को क्या बोलते हैं कि ये नोबल एलिमेंट्स है, नोबल मेटल्स हैं. सेम नॉन मेटल्स के केस में भी है. जितने गैसेज होती है नॉन मेटल्स में आपके गैसेज होंगी, सॉलिड्स भी होंगे और प्लस गैसेज भी होंगे. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल गैसेज विल रिएक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है और आपके वो हैं क्लोरीन वगैरह या रिएक्टिव नेचर की होती हैं. ठीक है, वेयरएस कुछ गैसेस ऐसे होती हैं जैसे कि आपकी हीलियम है, जेनॉन, नियॉन. ठीक है, ये जो आपकी गैसेस होती हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं वो आपके अनरिएक्टिव होती हैं. इनको बोलते हैं नोबल गैसेस. ओके, क्लियर. नाउ अब हम देख लेते हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ की रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, अब आपको इस चीज के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना है. ठीक है, जब आप 9th-10th में जाओगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि कौन से मेटल्स कितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो दिस इज द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे लाइन से लिखा हुआ है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है, उसके आपके मेटल्स के नेम है, उसके बगल में आपके
उनके सिंबल्स लिखे हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्टिविटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ शो की गई, यानी कि ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो मोर रिएक्टिव हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और जो सबसे लास्ट में होगा उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, सोडियम, इसीलिए पोटेशियम को जो है आपका पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है। तो जो जिसके नीचे है, ठीक है भाई, एक के नीचे दूसरा है, यानी कि जो उसके नीचे वाला है वो उससे कम रिएक्टिव होगा, फिर उसके नीचे वाला वो उससे कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी पूरी सीरीज बनी हुई है, और इसमें आप देखोगे जो नीचे सिल्वर गोल्ड है वो आपके लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यूजेस की अगर बात करें तो आपने भी पढ़ा है कि हमारे घरों में जो है आपके यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं वो आपके स्टील है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ब्रास है, इसके बने होते हैं, ठीक है। मेटल्स के आपके इलेक्ट्रिक वायर्स बने होते हैं क्योंकि इनके अंदर कंडक्टिविटी है, ठीक है, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनके जो है आपके ये सारे मटेरियल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जो दूसरे मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड सिल्वर जो रिएक्टिव नहीं है उनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि बहुत ही शाइनी होते हैं, ठीक है, और इनकी डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी ये भी ज्यादा होती है, तो इनके ये चीजें बनाई जाती हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। ओके, नाउ जैसे कि सिल्वर फॉयल है, ठीक है, चांदी का वर्क जिसको बोलते हैं, वो डेकोरेटिंग के लिए यूज किया जाता है स्वीट्स पे, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पतली सी लेयर होती है, वो डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, आप खा भी सकते हो। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम क्या होता है, वायर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मरकरी जो लिक्विड मेटल होता है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है थर्मोमीटर में, प्लस CFL, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट में। नॉन मेटल्स के यूजेस की बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल्स में क्या है आपके, जैसे कि ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो इसका जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑक्सीजन जो है आपके एग्जिस्टेंट के लिए जरूरी है, यानी कि आप इससे ब्रीथ करते हो, अगर ऑक्सीजन एयर में नहीं है सो वी कांट ब्रीथ एंड वी कांट लाइव, ठीक है, हम रह भी नहीं सकते उसके बिना। और ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है, एयर की वजह से जो है आपका बर्न करता है, तो ऑक्सीजन जो है उसकी हेल्प से बर्निंग होती है, ठीक है। नाउ जो से आपके कार्बन है, ठीक है, कार्बन क्या होता है, हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह में जो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, इसीलिए इसको वॉन्ड्स वगैरह को जो है आपका सही करने के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, इससे प्रोटीन बनता है, तो नाइट्रोजन जो है वो आपका वो भी बहुत जरूरी है। ना क्लोरीन जो है वो इट्स यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, तो क्लोरीन को जो है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी कि जब हम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटीज को हटा देता है, तो इट्स यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, क्लियर। नाउ आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड।